Okay. A very good evening to each one of you. Myself, Karan Patel from UK. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning, Guruji Ke Saath Guruvar 2.0, which we started on 10th of April 2025 under the mentorship of our Guruji, Dr. Liaquat Namole sir. Recently, we completed free webinar series of 100 lectures on Zoom, which was available on our YouTube channel, that is Ignited Minds by PHF. And now we are sharing a new series of lectures, What Women Want, to explore a woman's heart, emotions, need to be able to heal her. We have already shared few emotion in past 25 lectures, and today we are exploring another emotion in session 153. Today, I feel blessed, honored, and thrilled to welcome Dr. Liaquat Namole sir to share his expertise. Dr. Liaquat Namole sir is most eminent and passionate homeopath from Nasik, Maharashtra. Sir has more than 31 years of experience and he has conducted more than 300 seminars and more than 250 webinars all over. Sir has conducted nationalized seminars on specific diseases like diabetes, cancer, infertility, skin, pediatrics, etc. His motto is to convert 10,000 GPs to homeopathy. Till now, he is successful in converting more than 2,000 GPs to homeopathy. If not 100%, they are practicing GP and homeopathy together. He is a pioneer of group Ignited Minds by PHF, where more than 2,500 doctors learn on daily basis. He has discovered a unique method known as MML, Mind Method by Dr. Liaquat. The focus of MML is to practice solely on mind. Empathy is the mantra. Dr. Liaquat Namole sir is a master of gestures. He is the one who has introduced gestures in homeopathy. Through Sir's keen observation and huge experience, he has found out many original gestures, which is a blessing to the world of homeopathy. He is an author of bestseller book Humanopathy. Till now, more than 20,000 copies have been sold, and Sir is now working on his second edition. So please welcome Dr. Liaquat Namole, sir. Over to you, sir. Thank you. I'm flattered. Thank you for like Thank you, sir. seriously. Thank you so much. Every time I hear, my God, मैं बोलता हूँ यार इतना सब लोड लेके जीना है मुझको भी. Crazy. No, but that's nothing, sir. There's a lot more to say. God. Over Thank to you. you, sir. Thank you so much. Thank you. It's a very pious day today. Today is our master Dr. Simon Hellman's death anniversary. So first of all, gratitude to our great master Dr. Hellman. Uh, it's a coincidence. Even my father passed away the same day, 2nd April. Today is 25th death anniversary of my father also. Okay, so let us start the case. Yeah, it's a case of a doctor of knee pain. Okay, she had come to me for other complaints also. Little obese lady uh, complained of knee pain. She's 51 years, okay, of age. Yeah, came with severe right-sided knee pain since yesterday night. Stiffness, sensation of uh, and tightness of the knee. Could not walk, started limping after doing morning course. When she came with complaints, she was in tears. Actually, ro rahi thi. She was in tears, and when she came with complaints, she was in tears. On further inquiry, revealed that she was extremely hurt because she was accused at her home for financial transactions from mother-in-law account. उसके घर में एक देवी की एक पूजा थी एक्चुअली. पूजा में सब लोग मिले. तब फिर उनके जेठ जी ने ये देखा कि उनके सासू माँ के अकाउंट से काफी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए थे. इट वाज लाइक 40 और थाउजेंड्स जो कि उनके मदर इन लॉ के ट्रांजेक्शन थे. लेकिन चूंकि उनको बैंकिंग नहीं जमता था तो इनके नाम से इनके अकाउंट से होता. ठीक है. तो फिर जेठ जी ने उस पर से उनको बहुत बुरे से डांटा और ये लेडी ने रिएक्ट भी नहीं किया. ठीक है. दिस लेडी इज टेकिंग केयर ऑफ मदर इन लॉ. इसने इसके फादर इन लॉ की भी पूरी सेवा की. फादर इन लॉ इज ऑल्सो नोन.
Very fondly, she used to call. She was referring to her father-in-law as Papa and to the mother-in-law as मम्मी. ठीक है, ये नहीं कि मेरी सासू माँ और ससुर जी, नहीं. ठीक है, इस तरीके से she always used to talk, always spoke about them. Okay, the patient is doctor herself. She gave up her career to be able to be with her in-laws. उसका हस्बैंड शिफ्ट होते रहता है अलग 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 जगह पर, ये यहीं पर है. शी इज टेकिंग केयर ऑफ अ डॉटर. ओके, डॉटर इज आल्सो नॉट स्टेइंग देयर, डॉटर इज आल्सो वर्किंग समवेयर एल्स. ओके, इसके पेरेंट्स भी नहीं है. इसकी मम्मा वाज अ वेरी बिग ऑफिसर. ओके, बहुत बड़ी गवर्नमेंट ऑफिसर थी. ठीक है. और ये मेडिकल प्रैक्टिस चुके डॉक्टर है. तो ऐसा इनको क्या, मतलब ये तो पागल बनाने के धंधे होते हैं सब लोग कि आप डॉक्टर बेटा आप ध्यान रखो, है ना. ये तो आप सब जानते हैं. बहुओं को या बेटी इसी तरीके से काम करा के लेने का तरीका अपने इधर नहीं है. तो आप डॉक्टर हो तो आप ही अच्छे से ध्यान रखोगी. तो हस्बैंड मस्त 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 मतलब बेचारा अलग अलग जगहों पर काम कर रहा है और ये यहाँ पर है. हस्बैंड आता है महीने में 15 दिन में 1-2 दिन के लिए आता है और चला जाता है. हैंडसम है, ये थोड़ी सी फैट है. ठीक है, क्वाइट ओबीज. ओके. उसका फीलिंग था शी फेल्ट वेरी हर्ट एंड ह्यूमिलिएटेड. सर मैंने अपने आप अपना सब कुछ बाजू रखा, मेरे हस्बैंड ने भी अपने फैमिली लाइफ बाजू रखा और पेरेंट्स के लिए सेक्रीफाइस किए हैं. ठीक है. इसकी मदर इन लॉ काफी डोमिनेटिंग है. कुछ चीजें मैं इसमें नहीं लिख पाया था, आपको बताता हूँ. मदर इन लॉ काफी डोमिनेटिंग है और मदर इन लॉ ने इनको ये भी बोला है कि अभी खुद का खर्चा उठाओ, हर चीज के लिए बेटे पर क्यों डिपेंडेंट रहती हूँ, जबकि इसने अपने लाइफ के ऑलमोस्ट 25-26 साल घर के लिए ही दिए. मदर इन लॉ की ही सेवा की, फादर इन लॉ की सेवा की. अब मदर इन लॉ इसको इस तरीके से बोल रही, उस चीज के लिए भी ये लड़की बहुत, लड़की एज एन ये लेडी बहुत बुरा फील कर चुकी थी. मुझे याद है वो चीजें, वो इंसिडेंट्स भी मुझे याद है. ठीक है. तो ये मेरे पास में आई थी कि सर मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे होम्योपैथी सिखाइए. ठीक है. उसकी एक क्लासमेट है, उसने बोला कि यू गो टू डॉक्टर लियाकत, ही विल टेक केयर, ही विल टीच यू. ठीक है. और जब भी घर में, मैं बोला आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया, तो बोली सर किस घर में सब लोग थे, घर में शांति, मुझे नहीं अच्छा लगता है, अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो घर की शांति भंग हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं बोलती. ठीक है. She says that she always respect the elderly and keeps quiet. She added that as a child she lived with grandparents as they were old. मतलब ये बचपन में भी ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास रही है, चूंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स पे थे, तो ये बचपन में भी उनका ध्यान रखती थी. एज अ कंपनी शी लिव विद हर ओन ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है. तो ये केस है जब दवाई दिया. और हाँ, इसका एक क्लासमेट है, तो उससे कम से कम 15-16 साल से ये दवाई ले रही थी और उसको ये एकदम भगवान की तरह मानती है, क्योंकि वही इसके इसके डैडी को भी ट्रीटमेंट देता था, इसके हस्बैंड को भी देता था. अब इसके हस्बैंड भी अपनी दवाई से माशाल्लाह से बहुत मस्त हुआ है. उसके हस्बैंड की केस का भी बताऊंगा मैं. ठीक है. तो ये है, 15-16 साल से वो अपने क्लासमेट से दवाई ले रही थी, उसको एकदम भगवान की तरह मानती है ये लड़की. ठीक है. दिस इज द केस. सिंपल है एकदम. ठीक है. तो बड़ों का ध्यान रखती, बड़ों को उल्टा के नहीं बोलती है. जेठ जी ने बोला, उसको भी उल्टा कर नहीं बोला. इतने सालों से घर में ही है, अलग नहीं रहती है, मतलब हस्बैंड के साथ नहीं जाती है. ठीक है. इसने दे चोज टू, हस्बैंड ने बोला कि अ, माँ की सेवा कर, ये माँ की सेवा कर रही है इतने दिन से. इसकी बेटी भी इसको बोलती है कि मम्मी तू क्या कर रही है, अभी कब अपनी जिंदगी जिएगी. इसकी बहनें भी आती है मेरे पास में, तो शी ऑल्सो से, मैंने भी उसको बोला कि तू क्या कर रही है, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, यू 52 समथिंग, कब जिएगी अपनी जिंदगी. मेरी फ्रेंड ने इसको, मतलब हमारी कॉमन फ्रेंड है, उसने इसको बोला कि तू जा लियाकत के पास, वो तेरे को पढ़ाएगा. तो मैं इसको बोला बेटा डोंट वरी, पढ़ाऊंगा तुझको इंशाल्लाह. तो दिस इज द केस. एंड दवाई देने के बाद में, ट्रस्ट मी, she was sitting besides me and her husband was there that time, her daughter had also accompanied that time. उसको दवाई देने के 5-7 मिनट के बाद में बैठे बैठे उसको दर्द करने लगा. एंड देन आफ्टर 10-15 मिनट शी वाज लाइक वॉकिंग. अभी अभी उसका फॉलोअप भी आ रहा है, दो तीन मुझे पुराने भी कंप्लेंट वापस आ रही है और वो सब जा रही है. और अभी भी उसको पिछले भी एक बहुत बुरा चेस्ट पेन हुआ था, आज मुझे आकर बोली थी
कि सर मुझे इतना बुरा प्रेशर लग रहा था चेस्ट पे इतना, तो उसको डर लग रहा था कि कहीं मेरा, क्योंकि बिकॉज शी इज फैट, तो उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, उसका बीपी भी बहुत ज्यादा रहता है उसको। फैटी लीवर तो ऑब्वियसली है, प्री डायबिटिक भी है। लेकिन वो जो उसको मेडिसिन एसओएच दे के रखा था मैं, उसका one pill she dissolved in water and she took the water dose, and then she slept, and in the morning when she got up she felt so relaxed, she felt the chest to be very light. So even that thing is gone. उसकी काफी पुरानी कंप्लेंट जाकर के जा रही है फटाफट, आ रही है जा रही है, मतलब इन सिलसिला इट हैज बीन इट्स बीन ऑलमोस्ट 15-20 days नाउ, एंड उसकी सारी, उसको जो जो भी याद आ रहा है कंप्लेंट जा रही है जा रही है, आ रही जा रही है, इतना फास्ट आके जा रहा है। तो इतना आइडियल क्योर माशाल्लाह से मिल रहा है इसी केस के अंदर। दिस इज द केस, बहुत सिंपल है। बोलिए। हेलो, हेलो, आई यू विथ मी? आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते, आई यू विथ मी? एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. या, चल मी, Yes, sir. बोलिए। हेलो। या, हाँ सर, ये शी इज अ लेडी, एजुकेटेड एंड ऑल, लेकिन फैमिली के लिए उसने पूरा सेक्रीफाइस कर दिया है खुद को। लाइक लेकिन अब तक वो खुश थी, अब तक ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट एलिमेंट स्टार्टेड आफ्टर इंडिग्नेशन। तो एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, हार्मनी डिजायर फॉर, सेल्फलेस लेडी लगी है सर, एंड केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट, एंड वीपिंग रिप्रोचेस फ्रॉम, तो सर कार्सिनोसिस। थैंक रिलीजन बीइंग अ मार्टियर। यू। यस सर। वेरी नाइस। What else? Anybody else? I had given her carcinosin before. It did help her. No, I did not give her carcinosin. I had given her something else. But she was given carcinosin also, and it helped her a little bit, very little before. Hmm. Or good butter, very nice. फर्स्ट अपने तो दिमाग में इग्नेशिया, carcinosin ही आता है। इग्नेशिया मैंने दिया था इसको, फर्स्ट जब आई थी तो उससे उसको फर्क पड़ा था। ठीक है, थोड़ा फर्क पड़ा था। और रॉन्ग सफर्ड सर, एलिमेंट delusion wrong suffered. यस यस यस, रॉन्ग सफर्ड, वेरी मच। तो उसी से तो कार्सिनोसिन दिया था ना, डिलीजन, रॉन्ग सफर्ड, ये सबसे दिया था। गुड। और And I'm thinking Manila albums ओके, या गुड, because it's Harmony Desire और वो या सबका केयर कर रही है and she's like a girl in a golden cage kind of thing. सब कुछ अच्छा है and looking after everyone and she's suffering. That's the गर्ल इन द गोल्डन केज इज Manila मोनीला is it? अल्बिकन्स। Yeah, that's what I'm thinking. Manila. मोनीला इज मोनीला हाँ अल्बिकन्स। जी, हाँ जी। बट मोनीला अल्बिकन्स, ओके, या, दे सी, मोनीला अल्बिकन्स का सिचुएशन क्या आता है कि दे आर लिविंग इन अ लग्जरी लाइफ। हियर शी इज नॉट, husband is not staying with her. You got me? The situation of Monila albicans is they're harbored, na? Monila is a it is harbored, ना? तो उसको तो मस्त एकदम मिट्टी में रहती हो, तो मस्त। इसका वैसा नहीं है, गोल्डन केज नहीं है इसको, इसको केज है। ओके सर, केज तो है, ये है। केज है, गोल्डन नहीं है, समझ रहे हो? जी। और नाइस, यू नो, वेरी नाइस बेटा। यू आर थिंकिंग ऑफ हर एज अ ह्यूमन बीइंग इन टोटलिटी, दैट इज नाइस। व्हाइल्स जब बहुत क्रॉनिक कंप्लेंट्स आती है ना अपने पास में, और इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो फिर टोटल चीज को, टोटल पेशेंट को लो, एक अंडरस्टैंडिंग लो, फिर आपको बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पूरा लाइफ स्पेस पेशेंट ने बता दिया आपको आते ही, है ना, ये ऐसा है, ये है, ये है, ये है। तो जी, और कोई, एनीबडी एल्स?
हेलो। हाँ बोल बेटा। या से नो हाँ कौन सी सर। बोल? सर, सर फाल्को पी। फाल्को भी वेरी गुड, या वेरी क्लोज, वेरी वेरी यस सर, क्लोज। फाल्को पी। ही इज delusion. He डिलीजन is प्रोस्टिट्यूट। spiritually persecuted and she has full of power, but she doesn't know her power. That's why she cage herself with burden of family and relatives and society. बट दिस गर्ल इज नॉट मच कॉन्फिडेंट। पावर नहीं ना इसमें, पोटेंशियल अच्छा है। सर, सर देखो ना, पोटेंशियल आज है इसलिए डॉक्टर तो बन के आपके कम पास से आ कम गई ना 25, सर। डॉक्टर बन के सर 25 उसके साल पास, हो गए। हाँ लेकिन उसको अभी तक वो केज थी खुद के लिए। लेकिन फाल्कन क्या अब होता वो, है ना, हाँ वो खुद की राख से फिर खड़ा होता है ना फाल्कन। हाँ सर, हाँ। लेकिन अब वो उड़ान लेना चाहती है। उड़ान का चल भी नहीं पा रही है। नहीं, इसलिए तो सर उड़ान लेना चाहती है, इसलिए तो आपसे होम्योपैथी सीखने आई ना सर वो। उड़ान का अगर से सवाल होता ना तो फिर कहाँ पर आएगा? हाँ, पंछियों को कहाँ बांधा जाता है? वेयर आर द बर्ड्स टाइड? क्या बोला सर? यस सर। एंकल्स। सर प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट। एंकल, एंकल ना। हाँ हाँ। इसको एक्चुअली एंकल यस सर। पेन भी था, मतलब उसका एंकल पेन भी गया है। अच्छा, अच्छा, तो आप सही चल रहे हो, अच्छा, अच्छा। आप सही चल रहे हो, लेकिन ये हाँ, हम्म, उड़ने वाला पंछी नहीं है। अच्छा सर। हाँ, आप बहुत सही चल रहे हो, लेकिन वेरी नाइस, थिंकिंग वेरी वेल। आई मस्ट थैंक यू कांग्रेचुलेट। सर, थैंक यू। आप सोच अच्छा रहे हो माशा, पोटेंशियल ये रियलाइज नहीं कर रही है। और थैंक यू। सबका करे जा रही है ना। हाँ, सबका करे जा रही है। फाल्कन करता है क्या सबका? नहीं सर। कार्सेलोसिन सबसे क्लोज था, इग्नेशिया उसके बाद में थोड़ा सा क्लोज था। इनफैक्ट मैंने इसको डलका मारा भी दिया था एक बार, जिससे उसको अच्छा लगा था, कुछ एक्यूट तक कंप्लेंट थी। तो चूंकि मैं बोला कि डैम्प एटमॉस्फेयर है, हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड भी दूर रह रहा है ना, तो वो चीज से मैं इसको डलका मारा दिया था। मेरा सेटल्ड एंगर टुवर्ड हस्बैंड होगा, बिकॉज सब डैम्प है ना आसपास, उसलिए हाँ। और पर्पसफुल लेकर के मैं डलका मारा दिया था कि मैं एक पर्पस लेके जी रही कि भाई अपने को बच्चा बड़ा करना है, हस्बैंड जब रिटायर होंगे तो आ जाएंगे, रहेंगे, एक मकसद लेकर जी रही जिंदगी का, ये समझ के मैं उसको दिया था। लेकिन डलका मारा का इंडिपेंडेंस वगैरह ये भी चीजें होती है। यहाँ पर ही मजबूर भी है ना, माँ बाप भी नहीं है, हेल्पलेस भी है ना। और चूंकि इतनी इन्फ्लुएंशियल माँ की बेटी होने के बावजूद भी ये लड़की ने एक मीक रोल लिया, है ना। ये नहीं कि बाबा, उस वक्त माँ इसकी जिंदा थी ना जब इनिशियली ये सब चल रहा होगा लाइफ में, हस्बैंड दूर रह रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन उसने वो वाला मायके का बर्डन, मायके वाला वो लेकर नहीं आई वो, कि भाई मेरा मायका ये है, मेरा मायका वो है, मेरी ये नहीं लेकर आई वो, इधर ही इधर की रही। मायके में भी क्या था कि बचपन में ग्रैंड पेरेंट्स बूढ़े से, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स के पास रही है, समझ रहे हो। तो वो भी एक चीज को आपको ध्यान में देना है। तो इसलिए भी शायद माँ से रिलेट नहीं कर पाई, इसलिए भी शायद उसको माँ वाला वो फील नहीं आया कि मेरी माँ इतनी बड़ी ऑफिसर है। शायद वो भी एक चीज होगी, है ना। जी, और कोई, एनीथिंग एल्स, एनीबडी एल्स? सर ये ऑनर वुंडेड वाला फीलिंग, ऑनर वुंडेड, वेरी गुड, ऑनर, ऑनर। पोडोफाइलम, सेल्फलेस एंड या कॉक्यूलस सर, केयर ऑफ एवरीबॉडी। बट कॉक्यूलस में क्या होता है? रिकग्नाइजेस रियलिटी एंड एक्सेप्ट। इसने किया क्या? इसको तो ह्यूमिलिएटेड फीलिंग हो रहा है ना, जो हुआ है उससे इसको बुरा तो लग रहा है ना। कॉक्यूलस में कैलकुलेशन एबिलिटी होती है ना, मैथमेटिक्स एबिलिटी होती है ना, तो कैलकुलेट करके फिर वो चलता है। कॉक्यूलस बहुत नपी तुली, नपा तुला। कैलकुलेशन एबिलिटी मतलब क्या है? कैलकुलेशन मैथमेटिक्स एबिलिटी का मतलब क्या होता है ना, वो इंसान नपा तुला चलता है, नाप तोल के चलता है। कैलकुलेशन मतलब क्या? नाप तोल कर पाना ना,
प्लस माइनस कर पाना, तो वो लोग फिर नाप तोल कर चलते हैं, नाप तोल कर बोलते हैं। समझ रहे हो? हेलो, आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिमेंबर, नाप तोल कर चलने वाले लोग कैलकुलेशन एबिलिटी वाले होते हैं, बिकॉज वो मैथमेटिक्स एबिलिटी होते हैं, दे कैन कैलकुलेट थिंग एंड अकॉर्डिंगली दे कैन टेक अ स्टैंस, राइट? Yeah. Anybody else? So let's go with the rubric. Simple, right? What's the main rubric? What triggered it? उसको, उसका जो बुरा लगा, है ना, जिस तरीके से उन्होंने उसको इल्जाम लगाया, उस चीज का जो बुरा लगा ना, वो बहुत ज्यादा है, नहीं क्या? तो लेट अस गो टू फर्स्ट व्हाट, हार्मनी डिजायर, राइट? कि झगड़ा नहीं होना भाई। दूसरा, एलिमेंट्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन, राइट? शी फेल्ट ह्यूमिलिएटेड ना, that is mortification. Two, what else? So you go to this and then you see which remedies are coming: natural mood, carcinosin, lactic, podophyllum, vanilla. Right? Hello. Simple we are going, right? Harmony, desire and modification. Hello. ये बहुत common situation है ना घरों में की, hello. Isn't this a very common situation in the family for a bahu or anybody? Hello. Hello. बहुत common Yes, situation, Yes, sir. right? Yes, sir. It's a yes, very sir. common situation. So carcinosin गया, natural mood, podophyllum, vanilla. एंड फिर मैंने सोचा कि यार ये बचपन में भी माँ बाप के पास नहीं रही है, अब अभी भी पति के पास नहीं रह रही है। मतलब जो रिश्ता इसको नर्चर करने वाला है, जो रिश्ता इसका ध्यान, क्या करता है हस्बैंड वाइफ, वाइफ क्या करता है, हस्बैंड क्या करता है, वाइफ हस्बैंड के लिए क्या है, वाइफ हस्बैंड का ध्यान रखती है, हस्बैंड वाइफ का ध्यान रखता है, करेक्ट? हेलो। खास करके आप Yes, अब की sir. जनरेशन में आप एजुकेटेड हो, equal हो, right? So you are supposed to take care of each other. Now this girl is 50 something, 52 something. So when she's sick, who's taking care of her? इसका वजन बढ़ रहा है, हस्बैंड बाजू में होता तो बढ़ने देता? हस्बैंड एक्सरसाइज वगैरह करता, उधर एकदम फिट है, बढ़ने देता वजन? चल, हेल्थ का था, 15 साल से एक ही डॉक्टर के पास दवाई क्यों ले रही है? चल, ठीक नहीं हो रही है, बीमारी बढ़ती बढ़ती जा रही है, तेरा एक से दूसरा वजन बढ़ रहा है ना? प्री डायबिटिक है, क्या क्या है, चेंज करते ना डॉक्टर। इसने डॉक्टर भी चेंज नहीं किया, मतलब डिसीजन मेकिंग इसका कैसा है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है इसमें? हेलो, टॉक टू मी No, गाइस। No, sir. sir. नहीं है, वेरी स्लो इन टेकिंग डिसीजंस, राइट? 15 years शी टुक, है ना? उसकी फ्रेंड ने उसको बोला कि गो टू लियाकत, ठीक है, उसकी क्लासमेट है जो मेरी दोस्त है अच्छी माशाल्लाह से, ठीक है, उसने बोला गो टू लियाकत, देन शी केम टू मी एंड देन इनफैक्ट वो जब आई थी तो उसके साथ में और एक डॉक्टर को लाई थी, और वो डॉक्टर मेरे से बात कर रही थी, ठीक है, शी वाज स्पीकिंग एंड देन दिस गर्ल स्टार्टेड कमिंग, ठीक है। सो ये समझो, मतलब ये इतना मीक है ना? तो आई थॉट दिस इज, इसका प्रॉब्लम नरिशमेंट का है, राइट? ना इसके आत्मसम्मान पूरी, इनफैक्ट यहाँ पर उसके हस्बैंड ने बोलना चाहिए था ना इसके साइड से, जो कि नहीं बोला। फिर भी ये हस्बैंड के प्रति गुस्सा नहीं है कि नहीं जाने तो घर का खराब होगा, इसलिए नहीं बोलते हैं। किसी का स्पीकर चालू प्लीज बंद करो ना, बीच बीच में वो ये हो जाता है। हाँ, आपको बात करनी है ना तो बिल्कुल मौका दिया जाएगा जब करना है, प्लीज, ठीक है? तो हस्बैंड ने भी इसकी साइड नहीं लिया, हेलो, क्योंकि ये झगड़ा नहीं चाहती है, एंड शी डिडंट माइंड कि बिकॉज बड़ा है मेरे से, जेठ जी है। कम ऑन, इट्स हाई टाइम यू शुड स्पीक अबाउट योरसेल्फ, बोल देना चाहिए। इनफैक्ट तूने ये बोलना चाहिए था कि आप अपनी माँ से बात करो, जेठ जी को बोलना चाहिए था ना कि भाई आप अपनी माँ से बात करो, मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू रॉन्ग पर्सन, यू आस्क योर मदर इन लॉ, योर मदर।
इनफैक्ट हस्बैंड को भी नहीं बोलने देने का कि हस्बैंड व्हाई हस्बैंड शुड टेक साइड, यू शुड स्पीक फॉर योरसेल्फ एंड टेल योर मदर इन लॉ कि ये देखो आपके बेटे को बता दो, ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप जो भी बता दो इनको क्या है, राइट? हेलो, सिंपल ना? कॉक्यूलस होता तो ये बोलता है इसी जगह पे, आप तो बोले ना कॉक्यूलस, तो कॉक्यूलस वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस। कॉक्यूलस वुड हैव टोल्ड जेठ जी, क्या है जेठ जी आप क्या बोल रहे हो, मुझे क्या बोल रहे हो, आप अपनी मम्मी से पूछो, मैं तो उनका ध्यान रख रही हूँ। ऐसा हंस के टाल देता, कॉक्यूलस को भी मेंटेन करना होता है, लेकिन वो फिर क्योंकि हार्मोनी, क्योंकि कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, तो वो इस तरीके से बोलता है कि "हाँ, जेठ जी आप अपने मम्मी से पूछे"। फिर मम्मी को बोलती कि मम्मी जी आप बता दो, ये मुझे बोल रही है कि ऐसा ऐसा है, देखो। गुस्सा क्यों कर रहे हो, घर में पूजा का माहौल है, आपको जो भी पूछना है आराम से पूछे, आपकी मम्मी से पूछो, मम्मी बताओ इनको तो, खत्म बात। दिस इज द वे कॉक्यूलस वुड हैव हैंडल्ड इट, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ द कॉक्यूलसेस। लाइक एक तो एक है मेरी पेशेंट है, शी इज लाइक अ मदर टू मी, शी must be 90 now. Okay, so I know her since last 30 years. Since 1995, she is my patient. So 31 years. Very initial days वाली मेरी patient. ठीक है? तो I have seen her handling the whole family and even her daughter-in-law and sons, grandchildren, and okay. So I know Cocculus very well, right? So that's the way they handle it. Anyways, so I thought it's lac remedy, and I thought this is. I thought she's very close to Pulsatilla. She's very close to Sapia. Okay, she's very close to Ignatia. She's very close to Carcinus. Ignatia, little bit Ignatia इतना मान नहीं सहन करेगी, एक जगह पर वो injustice के नोट सपोर्ट में जाती है, क्योंकि इग्नेशिया को ट्रैप फील होता है, इग्नेशिया खुद कोशिश करती है, क्योंकि ट्रैप वाला ट्रैप में से निकलने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये क्या था, ये सैक्रिफाइस 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 कर रही है, तो मेरा यार ये तो देवी माँ है, ये मुझे लगा कि ये बहुत गरीब गाय है। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि ये गाय है, शी इज अ काउ। ठीक है, एंड टू माय सरप्राइज जब मैं देखा कि यार ये लैक डिफ्लोरेटम आ रहा है, आई गिव अ लैक डिफ्लोरेटम, guess I have 30 potency, I give her 30. Okay, and you see the result. Let's see which other rubrics that came to my mind. Yeah, she's family minded, right? Very family minded girl. ये कंप्लीट डायनेमिक्स का रूब्रिक है, मैटरनलिस्टिक एग्जैगरेटेड एकदम, ये इनफैक्ट इसकी बहन के बेटे का, इसका सबका ध्यान रखती है बहुत अच्छे से, तो इसको विश्व माता बोलते हैं। मैं इसको बोला भी था कि यार ये तू बंद करिए, यील्डिंग डिस्पोजिशन इज व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसने मान लिया ना हस्बैंड की बात को, बचपन में भी माँ बाप की बात को मान लिया, तो यील्डिंग डिस्पोजिशन चिल्ड्रन। ओके, इफ यू गो टू दैट रूब्रिक, okay, if you see that rubric, like diploatom is there. If you go and see in ठीक है, if you take yielding disposition in children, ठीक है, उसमें भी लैक डिफ आपको मिलेगा। if you go to mind section of complete dynamics, yielding disposition in children, harmony, desire for humiliation, ailment from being neglected, right? Hello, being neglected as a child, also being neglected as a wife, also husband should have taken stand. Now let's go to the practical tips of लैक डिप्लोएटम, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ काफी दिनों से। देखो ये बहुत अच्छा है, इजीएस्ट क्या है, सुसाइडल डिस्पोजिशन, इजीएस्ट आस्क क्वेश्चन एज टू क्वाइटेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू कमिट सुसाइड। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा कुछ बताओ ना कि मैं एकदम आराम से मर जाऊं, हेलो मुझे तकलीफ भी ना हो, कुछ भी ना हो, बोलते हैं ना बहुत लोग, हेलो, ओनली रेमेडी इज लैक डिफ्लोएटम। इफ यू
स्टडी लाइक डिफ्लोरेटम ओनली रेमेडी सुसाइडल डिस्पोजिशन। बहुत अच्छा रूल है। देखो देखो मेडिटेट्स ऑन, देखो सुसाइडल डिस्पोजिशन meditates on easiest way to of committing suicide। और कंप्लीट डायनेमिक्स बोलता है कि उस तरीके के सवाल पूछता है कि मुझे आसान मौत मिल जाए एकदम आराम से। कितना अच्छा है ये, कितने लोग बोलते हैं ऐसा ओनली रेमेडी। देखो आप, कंप्लीट डायनेमिक्स बोलता है कि सुसाइड डिस्पोजिशन आस्क क्वेश्चंस एज टू क्विकेस्ट एंड इजीएस्ट, है ना, मुझे आसान से मौत मिल जाए। दूसरी प्रैक्टिकल टिप्स है सैडनेस। सैडनेस कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग सैडनेस कॉन्वर्सेशन एवॉइड। जब भी बात करते हैं दुखी आत्मा और बात करके इसको अच्छा लगता है, बात करेगी तो दुख होगा। देखो ये बहुत अच्छा, अगेन दिस कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। सैडनेस कॉन्वर्सेशन वेरी गुड, बहुत प्यारा ये है ये। सैडनेस कॉन्वर्सेशन एवॉइड, सैडनेस कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग। कितने लोग हैं सिर्फ और सिर्फ लैग डी है। सैडनेस कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग लैग डी और वैनिला सैडनेस कॉन्वर्सेशन एवॉइड्स लैग डी। डल का वाला देखो क्यों डल का वाला इसको काम किया था। अगेन यू कैन सी एलईडी मेटल का रस जी, क्योंकि रस जी के अंदर क्या होता है, बिट्रेयल वाला फीलिंग होता है। तो ये दुखी होते हैं तो बात करना इनको अच्छा लगता है, किसी के साथ बात कर लिया तो इसके अंदर भी हम लोग फंस जाते हैं लाइट डिजायर के अंदर, क्योंकि बात करके हल्का हो जाते हैं ना ये। तो कॉन्वर्सेशन ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन एवरेज, ठीक है, बात करके हल्के हो जाते हैं ना, तो लाइट डिजायर में हम लोग कई बार फंस सकते हैं, इसके लिए बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप याद रखना। दूसरा है प्रैक्टिकल टिप, हेडेक विद कॉन्स्टिपेशन। ये क्या होता है हेडेक कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या कि इसको सब ये एक्सप्रेस नहीं कर पाती। कॉन्स्टिपेशन मतलब इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, राइट, डाइजेस्ट कर रही है, होल्ड कर रही है, उसके वजह से इसको सर दर्द हो जाता है। और दूसरा है अगेन यू सी डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस फ्रॉम डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, बराबर है ना। हेलो, क्योंकि इसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, इसके लिए यूट्रस भी होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो दोनों भी चीजें प्रैक्टिकली अगर चाहिए, पैथोलॉजिकली भी ऐसा आता है और इमोशनली भी आप देखोगे तो हेडेक फ्रॉम विद कॉन्स्टिपेशन एंड यूट्रस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डिफेक्टिव न्यूट्रिशन। लैक्टेशन के लिए दिस रेमेडी इज वन ऑफ द टॉप रेमेडीज। दिस आई यूज्ड टू यूज आई यूज्ड टू यूज लैक्टिफ्लोरेटम अ लॉट फॉर सप्रेस्ड मिल्क। सब लोग यूज करते हैं, है ना। मिल्क एब्सेंट, मिल्क डिसअपियरिंग, बीच में दूध चला जाता है, ठंडे पानी में हाथ डालने से दूध चला जाता है। और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक देखो, लैक्टेशन प्रेगनेंसी अनरिलेटेड टू, मतलब नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी मिल्क आता है। ये मैटरनलिस्टिक एग्जेगरेटेड की हाइट है। एंड वीनिंग लैक्टेशन, इतना दूध रहता है कि कुछ कुछ औरतों में जल्दी बंद नहीं होता है दूध, कई सालों साल चलता है। ये भी आप याद रखना कि प्लीज for weaning the lactation also you can use lactifluoridum. So don't give medicine on this. If you get these symptoms or these complaints, you please think about lactifluoridum, because lactifluoridum is a very less proven remedy, less understood remedy, and क्योंकि हम लोग के बाप रेमेडीज बैठे हुए सब इग्नेशिया, कार्सिनोसिन, पल्सेटिला, सेपिया, तो ये इग्नोर्ड है। ठीक है, अगेन मिल्क इंटॉलरेंस के लिए भी ओके, ये चीज के लिए भी मैंने काफी बार यूज कर चुका हूँ पहले, पैथोलॉजी पे करता था जब मैं। लेकिन ये भी एक याद रखो, मिल्क इंटॉलरेंस का केस आ रहा है, आपको हार्मोनी डिजायर वगैरह ऐसे कुछ रूब्रिक मिल रहे हैं, तो आप फिर लैक डिक्लोरेटम का भी थोड़ा सा पेशेंट से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। ठीक है, इन केस लाइक यू थिंक अबाउट लैक डिक्लोरेटम ऑल्सो एज वन ऑफ द डीडीज। ठीक है, डायबिटीज विद इमेसिएशन, इसके लिए हम लोग पहले एसिड फॉसी यूज करते थे। लैक डी इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर दिस। अगेन डायबिटीज इज, मिठास की कमी जिंदगी में है, उसके साथ में इमेसिएशन, मतलब उसके कारण ये इमेसिएशन हो रहा है, मतलब इमोशनल इमेसिएशन भी हो सकता है, राइट। चिल्ड्रन वीक, देखो इमेसिएशन इन चिल्ड्रन, अंडर नरिश चिल्ड्रन, माल नरिश चिल्ड्रन, यील्डिंग इन चिल्ड्रन। देखो मैं बोला ना यील्डिंग डिस्पोजिशन इन चिल्ड्रन, तो जल्दी मान जाने वाले बच्चे, देखो बॉटल फेड बेबीज, बराबर है। हेलो, क्योंकि अभी नाना नानी के पास में रही है, दादा दादी के पास रही है, माँ के पास नहीं रही है बच्चा, तो वहां पर ये पंगे होते हैं।
तो ये अंडर नरिश्ड माल नरिश्ड, मतलब अगेन इसको आप मेटाफर से भी लोगे तो उसका नरिशमेंट जो इमोशनल नरिशमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। समझ रहे हो? थैंक यू वेरी मच। दिस इज लाइक डी फ्रॉम माय साइड। एनी क्वेश्चंस? आई एम देयर, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। आई होप आई एम क्लियर अबाउट लाइक डी। थोड़ा सा मैं आपको समझा पाया, काफी चीजें उसमें टेक्निकल में जैसे डोमेस्टिक सोशल वगैरह नहीं समझा आपको, वो सब चीजें आपको आएंगी। लेकिन एक कॉन्फिडेंस वांट ऑफ सेल्फ एक ये ले लेना, आप यील्डिंग एक लेना। बहुत पंचतला जैसे लगेंगी, बहुत सिपिया जैसी लगेंगी, लेकिन इसके अंदर मेन क्या है? डोसाइल, स्लो, नहीं रिएक्ट करना है मेरे को, कुछ नहीं है सर ये नहीं। तो मॉरल में आप फंसते हो इसके अंदर अगेन, क्योंकि सेंसिटिव टू मॉरल के अंदर लैग डी नहीं है। प्लीज, बाद में एडिशन होगा तो पता नहीं है, लेकिन मेन उसके अंदर क्या है कि यील्डिंग है। सेंसिटिव टू मॉरल्स मेन क्या है? यील्डिंग, अपब्रिंगिंग अगेन, क्योंकि मॉरल बैकग्राउंड से आती है, कल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, तो फिर वो आता है। तो तब फिर आपने सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशन नहीं लेना है कि लोग क्या कहेंगे, इससे ज्यादा इसको हार्मनी का मेन ये है। तो सभी रूब्रिक नहीं लेने का है ना, फिर आप फंस से होते हैं इफ यू कीप टेकिंग रूब्रिक्स की बाबा, अरे यार ये बड़ों से ऐसा नहीं करती तो फिर ले लो सेंसिटिव टू मॉरल, अरे यार ये ले लिया अभी ले लो, फिर जाओ पर्सनल। नहीं, हार्मनी है, फिर हार्मनी वाला ये सब चीजें करेगा कि नहीं बाप बड़े हैं, मत करो, झगड़ा मत करो बेसिकली, है ना। तो यील्डिंग है, मान जाती है, नहीं बाबा मैं करना झगड़ा है। हस्बैंड की मान ली, इसकी मान ली। निग्लेक्टेड, सबसे मेन क्या था, इसको मेन जो वजह क्यों हो रही थी कि हस्बैंड निग्लेक्ट किया, बचपन में माँ बाप ने निग्लेक्ट किया हुआ है। तो बड़ा रूब्रिक ले लो, एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग निग्लेक्टेड। आपको लेना है तो फिर आप माल नरिशमेंट ले लो, क्योंकि नर्सरिंग नहीं हुआ है। वो लेगे तो वो ज्यादा चीजों को कवर करने वाला रहेगा। तो प्लीज रूब्रिक लेते हो मतलब ऐसा डोंट, क्या कहते हैं उसको, पहाड़ मत बना देना रूब्रिक्स का। चार रूब्रिक को मिलके एक रूब्रिक आ रहा है, अगर वो एक रूब्रिक चारों रूब्रिक को एक्सप्लेन कर रहा है तो उसी को लो, बाकी चार रूब्रिक को टालो, लेके रखो बाजू में, कीप इट एज अ सेकंड, उसका सेकंड क्लिपबोर्ड बना लो अपने कोटेशन चार्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मेन क्या था? यील्डिंग। मैंने इसमें लिया यील्डिंग चिल्ड्रन, यील्डिंग, ये दो रूब्रिक में लिया कि ये यहाँ पे भी मान रही है, यहाँ पे भी मान रही है। और ह्यूमिलिएशन मुझे बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि वो दिल को लगने वाली चीज है बहुत ज्यादा, जिसके कारण इसको नी पेन हुआ है। और इसका नी जो था, सी नी पेन इज अगेन ईगो, पर इसका ईगो ये था कि मैं अच्छी हूँ, मुझे हारमोनी रखना है, मैं त्यागमूर्ति हूँ। हेलो, ये इसका ईगो है। तो नी का इसका भले ईगोटिज्म में लाइक डिफ्लोइडम है कि नहीं मुझे पता नहीं है, शायद नहीं होगा, लेट मी सी, कंफर्म कर लेता हूँ। नहीं है जी, लैक लियोनियम है ना, लैक लियो है। तो ईगो नहीं है इसका, लेकिन एक अच्छाई का भी एक ईगो होता है ना अपने आप को, तो उसके लिए उसको निपेन हो रहा है, लेकिन ह्यूमिलिएशन के बाद निपेन हो रहा है। ह्यूमिलिएशन में लिया, मेन आई टू ह्यूमिलिएशन। ठीक है, ह्यूमिलिएशन में मॉर्टिफिकेशन, मतलब मन मार के जी रही है, यहाँ पर भी ह्यूमिलिएट हो गई, यहाँ पर भी मन मार के जी रही है। तो मॉर्टिफिकेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूब्रिक था, क्योंकि शुरू से बचपन में भी माँ बाप की मान मान ली, माँ बाप के पास नहीं रही, ग्रैंड पेरेंट्स के पास रही, अभी भी हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, तो मन मार के जी रही है, ये कोर है, पहले से चलता आ रहा है। ह्यूमिलिएशन, यस, यील्डिंग, यस। तो यील्डिंग, मॉडिफिकेशन, ह्यूमिलिएशन, ये तीन मुझे पिवोटल लगे इसके अंदर। फिर हार्मनी आ गया, हार्मनी तो खैर चार चांद लगा। ठीक है। हेलो। तो शायद बचपन में भी इसको हार्मनी ही चाहिए होगी, क्योंकि बचपन में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते ना, कि इसको याद होगा कि 50-45 साल पुरानी याद थोड़ी याद होगी, भाई मुझे जगह नहीं चाहिए। शायद वैसी होगी। तो एक समझदार बच्चा, मान लीजिए आपको बताता हूँ कि बचपन बच्चा कैसा रहेगा इसका, एक समझदार बच्चा, सबकी सुनने वाला बच्चा। ठीक है, समझदार बच्चा, सबकी सुनने वाला बच्चा, एक ही है। ठीक है। एज अ डॉटर, एज अ टीनेजर, अगेन सेम, माँ बाप ने बोला शादी कर लिया, अगेन यील्डिंग। हस्बैंड ने बोला कि माँ की सेवा कर लिया। समझ लो, तो यील्डिंग, समझदार, सबकी सुनने वाला, आदर्श नारी, हस्बैंड ब्रह्मचारी, सॉरी,
आदर्श नारी, ये भी एक याद रखिए। आदर्श नारी जो टिपिकल वो कलावती श्रीमती है ना, सेवा करे जो पति की, पति के साथ साथ पूरे घर की सेवा कर रही है। तो गरीब गाय याद रखिए। ठीक है, एनी क्वेश्चन? शार्प। ओके करम बेटा, यू कैन माइंड। Thank you, sir. Thank you, sir, for the deeper understanding of LACDAF. It's always pleasure to listen to you and learn something new every time. So thank you all for joining us today and hope to see you in the next session. Thank you. Thank you so Thank much. you. Have a Thank you, great day, sir. guys. God bless you. Bye bye.